Gordon model. We are doing the sum of Gordon model. So question number 4B, exam sum is this. Okay. Now the following data relates to Suraj Limited. Company name is what? Suraj Limited. Rate of return means rate of return on investment is given. That is what, beta? 15%. How much? 15%. EPS, earning per share, is also given, which is rupees 80. This is what? Earning per share, EPS. Okay. Find the market price per share. What do you have to find out? You have to find out the market price per share in the following cases. In the following cases, using what? Using Gordon model. Here, Gordon model. Okay. So using Gordon model. Now see, first case, second case. In first case, dividend payout ratio is what? Dividend payout ratio is given how much, bacha? You can see in the question also that every information is given. Here dividend payout ratio is 50% and cost of capital for first case, that is 12%. Now cost of capital, everyone knows that cost of capital is denoted by K. Cost of capital is what, bacha? Cost of capital is what, beta? Denoted by what? K, right? So cost of capital is denoted by K. Now next, in second case, dividend payout ratio is what? 60% and cost of capital percentage is what, beta? 18. Okay, means two cases are there and we have to solve it case wise. First case and second case. That's it and nothing else. Now treat each case independently. What? Treat each case independently. Yes, we have to solve it independently. Na? First case, then second case. That's it. So these are the available information, right? And here common thing is what? EPS is common for both case and rate of return on investment is common for both case. So that you have to remember it. See, EPS means E is common and rate of return on investment is also common for both the case. Only difference is what? Dividend payout and cost of capital. Here dividend payout and cost of capital. This is the difference. Dividend payout means किससे denote करते हैं? Alternative formula बताया ना मैंने. Dividend payout को किससे denote करते हैं बेटा? D1. What बेटा? D1. अब ये D1 बताया मैंने. D1 means dividend at the end of year 1. अरे नॉर्मल सी बात है, अगर आप इन्वेस्टमेंट आज करोगे तो आज ही डिविडेंड मिल जाएगा क्या आपको? मिलता है आज? नहीं, इट टेक्स ईयर. 1 साल लगता है भाई डिविडेंड मिलने में, समझा कि नहीं? 1 साल लगता है. सो हमेशा याद रखो, अगर आज इन्वेस्ट किया है मतलब 0 ईयर में इन्वेस्ट किया है तो 1 साल लगेगा. 1 साल वेट करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा फॉर 1 ईयर. देन ओनली यू विल गेट द डिविडेंड. बेटा याद रखने का, समझा? चल, तो इसलिए D1 लिखते हैं. और उधर देखो ई में भी क्या बोला मैंने? E1. वही पर्पस है, राइट? अर्निंग जितना भी आया एट द एंड ऑफ द ईयर 1 उसके बेसिस पे डिविडेंड हम देते हैं. बस और कोई पर्पस नहीं है 1 लिखने का, याद रखो, यही पर्पस है. क्योंकि आपको डिविडेंड तुरंत नहीं मिल जाता. आज इन्वेस्ट करो, डिविडेंड मिल जाएगा आज ही, कल मिल जाएगा, परसों मिल जाएगा. नहीं भाई, 1 साल लगता है उसके लिए. 1 साल वेट करना पड़ता है ना. नॉर्मल केस, प्री एक्विजिशन, पोस्ट एक्विजिशन, वो सब बात नहीं कर रहे हम लोग. नॉर्मली क्या, आज अगर इन्वेस्ट करता है तो 1 साल रुकना पड़ता है डिविडेंड के लिए बच्चा, इसलिए D1 लिखते हैं हम. Got it? ठीक है? तो ये नॉर्मल एजम्पशन याद रखने का बेटा, कॉमन थिंग है. सो दिस इज द सम. नाउ वी हैव टू सॉल्व इट स्टेप बाय स्टेप, राइट है? सो दिस इज द क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये एग्जाम का क्वेश्चन है. और एग्जाम में क्वेश्चन नंबर क्या था बेटा? 4B. याद रखना. कौन सा क्वेश्चन था? 4B. चलो, नाउ so company name for starting solution. Company name Suraj Limited. Calculation of what? Market price per share using what beta? Gordon model. Okay. Now formula everyone knows. आज today we will do the alternative formula. जो alternative formula बताया ना, वो बताया कि भाई यूज भी करते हैं उसको, एक बार यूज करते हैं अभी. ठीक है, alternative formula भी. तो alternative formula क्या है अपना? P0
P0 is equal to D1 divided by कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस क्या है, ग्रोथ रेट। ठीक है, बराबर है। दिस इज व्हाट बेटा ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला। यस, वेल डन बेटा। नाउ दिस इज द ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला, यू ऑल हैव टू रिमेंबर इट। एक ही मतलब है। वेरी गुड विदिशा एंड अक्षता, वेरी नाइस। देखो अभी ये ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला है, अपना नॉर्मल फॉर्मूला क्या था, नॉर्मल फॉर्मूला। इधर मैं नॉर्मल फॉर्मूला लिख देता हूं समझाने के लिए कि ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला और नॉर्मल फॉर्मूला दोनों एक ही है। नॉर्मल फॉर्मूला क्या है, P मतलब प्राइस, सी इधर लिख देता हूं, P0 या P भी लिखेगा तो फिर भी चलेगा। E1 राइट है, माइनस सॉरी E1 1 माइनस B था, है कि नहीं, डिवाइड बाय क्या, के माइनस B इंटू आर। B इंटू आर को क्या बोलते हैं, ग्रोथ रेट। ठीक है, B इंटू आर क्या होता है बेटा, ग्रोथ रेट। B फॉर रिटेंशन रेशो एंड R फॉर रेट ऑफ रिटर्न। मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या मिलता है, ग्रोथ रेट। इधर आ गया ना ग्रोथ रेट, ठीक है नहीं, जी डायरेक्ट ले लिया तो ये डायरेक्ट आ गया इधर। ठीक है, चलो अभी देखो, अब ध्यान से देखना, सब लोग ध्यान से देखो। अभी सबसे पहले ये तो फॉर्मूला है, कॉमन फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला एक ही मतलब है, आंसर सेम आएगा, ये यूज करो चाहे ये यूज करो। तो अभी तक ये यूज किया हमने लास्ट लेक्चर में, अब ये भी यूज करके देखते हैं, वही ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला, एक ही मतलब है। तो चलो अब आ जाओ, सबसे पहले क्या करना है अपने को, केस 1 सॉल्व करना है। तो इधर केस 1 डाल देता हूं मैं, केस 1। व्हाट बेटा, केस 1, राइट। अब केस 1 आपको सॉल्व करना है तो पहले दिखा दो सब इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया अपने को। देखो अभी केस 1 में आपको P0 पता है, P0 मतलब आपका मार्केट प्राइस है, D1 निकालना है। व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, D1, है कि नहीं। अब D1 कैसे आएगा, D1 मतलब क्या हो गया, जो डिविडेंड है। ठीक है, तो दिखा दो इधर, डिविडेंड आपको निकालना है, राइट है, तो D1 मींस डिविडेंड। व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, डिविडेंड। ओके, डिविडेंड पर शेयर। अब ये डिविडेंड पर शेयर कैसे निकालोगे आप, बराबर है। आपको देखो क्वेश्चन में डायरेक्ट डिविडेंड पे आउट रेशियो दिया केस ए में, फर्स्ट केस में। इधर देखो शेयर करता हूं, सी सी एवरीवन, ध्यान से समझो, और कुछ डाउट रहेगा तो तुरंत बोल देगा, बराबर है। आ जाओ, देख रहे हो ये आपको दिख रहा है इधर, डिविडेंड पे आउट रेशियो फर्स्ट केस कर रहे हैं ना, डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या है, 50%। ओके, तो आ जाओ, देखो डिविडेंड पे आउट रेशियो आपका 50% है, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो है 50%, और डिविडेंड पे आउट रेशियो किसके ऊपर मिलेगा आपको, अर्निंग्स के ऊपर, राइट है। सो अर्निंग्स कितना है, तो डिविडेंड पर शेयर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अर्निंग पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय डिविडेंड पे आउट रेशियो। अर्निंग पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय व्हाट बेटा, डिविडेंड पे आउट रेशियो। ओके, क्लियर है। तो अभी देखो, अभी ये निकाल लो जरा, ये अर्निंग पर शेयर इंटू डिविडेंड पे आउट रेशियो मतलब क्या हो गया आपका, अर्निंग पर शेयर कितना है, ₹80 मल्टीप्लाइड बाय, ये तो खाली आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 50%, राइट, मल्टीप्लाइड बाय 50%, तो कितना हो गया 40। यस, वेल डन सुनीता। तो ये आपका हो गया 40%, मतलब 40 रुपीज। तो 80 का 50% मीन्स 40 रुपीज, समझा, 40% नहीं 40 रुपीज। ओके, सो 80 का 50% आ गया आपका 40 रुपीज। सो दिस इज व्हाट डिविडेंड, ये आपका D1 हो गया। ठीक है, मालूम पड़ा, देखो इधर डायरेक्ट आ गया ना D1, ये D1 हमने निकाला इधर, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो दिया, डायरेक्ट आ गया। अभी देखो सी एवरीवन, अब ये फॉर्मूला यूज करो, ये वाला जो नॉर्मल फॉर्मूला है। आ जाओ, E1 कितना है अपना, ये देखो
E1 कितना है? E1 इधर देखो, इधर सब लोग, हाँ ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। E1 है मतलब अर्निंग है ₹80, ठीक है। 1 माइनस बी, बी मीन्स व्हाट? रिटेंशन रेशो। ओके बेटा, अगर केस 1 में आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो 50% है, इफ डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 50%, इसका मतलब रिटेंशन कितना होगा? 50%। अरे भाई, परसेंट मीन्स 100, 100 में से 50% डिविडेंड दे दिया, तो रिटेन कितना रखा? रिटेन कितना है आपका? 50%। तो 1 माइनस बी 50% हो गया, 50% मतलब 0.5। नाउ 80, 1 माइनस 0.5, 0.5। चलो करो, कितना आ रहा है बोलो, कितना आ रहा है? 80 इंटू 0.5 करो, कितना आ रहा है? 40। आया कि नहीं? तो ये यूज करो चाहे डायरेक्ट D1 करो, मतलब एक ही चीज है, फाइनली आंसर आपका वही आएगा। समझा? क्लियर है? लेकिन ये आपका दोनों अल्टरनेटिव से भी बता दिया मैंने, ताकि आप कोई भी फॉर्मूला जो आपको यूज करना है करो, फाइनली वही करना पड़ेगा। यस, वेल डन एवरीवन, शाबाश। ठीक है, बराबर है बेटा? क्लियर? तो मालूम पड़ गया ना, दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है, इसीलिए तो अल्टरनेटिव बोलते हैं। ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड, आप ये यूज करो या ये यूज करो, जो यूज करना है कर सकते हो। ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपका D1 आ गया, बराबर है। चलो अभी D1 के बाद अपने को क्या क्या और डेटा चाहिए? D1 हो गया KE, KE मींस कॉस्ट ऑफ कैपिटल। व्हाट इज KE? KE इज व्हाट बेटा? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नाउ कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको कितना दिया है? दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इधर है, हाँ 12%। See, in first case, in case 1, your cost of capital is 12%. Okay? Yes. KE भी डन हो गया। अभी ग्रोथ रेट निकालना है। क्या निकालना है अपने को? ग्रोथ रेट। ठीक है जी, आ जाओ जी, दैट इज ग्रोथ रेट। नाउ बेटा, ग्रोथ रेट तो क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया ही नहीं है, तो ग्रोथ रेट के लिए तो यही यूज करना पड़ेगा, बी इंटू आर। बेटा ग्रोथ रेट के लिए वी हैव टू यूज बी इंटू आर, क्योंकि दिया ही नहीं है डायरेक्टली, इट इज नॉट गिवन डायरेक्टली, सो वी हैव टू यूज बी इंटू आर, राइट? सो ग्रोथ रेट अपने को निकालना है। ग्रोथ रेट निकालने के लिए दैट इज क्या करना पड़ेगा अपने को? वही रिटेंशन रेशियो इंटू अपना रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सो बी इंटू आर। बी मतलब क्या हो गया? रिटेंशन रेशियो। क्या हो गया बेटा? बी इज व्हाट? रिटेंशन रेशियो। इधर दिखा देते हैं, बी कितना है अपना? रिटेंशन रेशियो कितना है बेटा? 50% है ना फर्स्ट केस में। इफ डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 50%, तो रिटेंशन भी 50%। तो बी इज व्हाट? 50%, दैट इज 0.5 इंटू आर। कितना है आर इस केस में? केस नंबर 1 में आर कितना? रेट ऑफ रिटर्न। वैसे भी आर तो कॉमन ही दिया ना बेटा आपने को, देखो क्वेश्चन में देखो, आर इज गिवन कॉमनली। ओके, तो 15%, 15% कैन बी रिटन एज 0.15, और बेटा 0.15। गॉट इट? क्लियर? तो चलो कितना आ रहा है? तो ग्रोथ रेट कितना आ रहा है? 0.1, 0.5 इंटू 0.15। यस, करेक्ट, आई कैन सी द आंसर्स। वेरी गुड, वेल डन एवरीवन। 0.075। ओके, तो इसको इधर सामने लिख देता हूँ इसके। तो ये आ गया 0.075। यस, नाउ वी गॉट ऑल द इंफॉर्मेशन, वी गॉट ऑल द इंफॉर्मेशन, राइट है? अब सारे इंफॉर्मेशन मिल गए अपने को। D1 मिल गया, वी गॉट D1 ऑल्सो, we have our cost of capital also, right? And we got growth rate also, right है? we got मतलब फाइंड किया, और जो है अपने पास वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया है। क्लियर है? राइट है? इधर तक किसी को कोई डाउट है क्या? टिल हियर इफ देयर इज एनी डाउट टू एनीवन, अनम्यूट करके बोलो, फिर से बता दो, क्योंकि ये पार्टी सबसे मेन है। इसके बाद क्या करना है? सिर्फ कैलकुलेशन ही तो करना है। पक्का? लॉक कर दो? ऑल क्लियर? सबको क्लियर है? किसी को डाउट नहीं है कोई कैलकुलेशन में इधर? और देखो ये जो नॉर्मल फॉर्मूला है वही है सेम। ओके, चलो तो मूव टू नेक्स्ट।
फॉर्मूला यूज करो, आ जाओ, जो फॉर्मूला था अपना P0 का वो यूज कर लेते बेटा. नाउ लेट्स यूज इट. सो द फॉर्मूला P0 इज इक्वल टू, क्या हो गया फॉर्मूला? P0 इज इक्वल टू D1 कितना आया था अपना 40, D1 40 था बेटा. उसके बाद क्या है KE कॉस्ट ऑफ कैपिटल दैट इज 12%, दैट इज 0.12 माइनस कितना है 0.075 ग्रोथ रेट 0.075 राइट है 0.075. नाउ 40 डिवाइडेड बाय 0.12 माइनस 0.075 करो कितना आ रहा है आंसर? ओके 0.045. okay, I can see the answers from many students. Yes, very good. 0.045. And final answer is what? Yes, very good. Well done everyone. Final answer is what? रुपीज 8, देखो ऐसा आ रहा है 888.8888, यही है ना? ओके, सो 888.89 कर लेते हम लोग. So this is the market price. This is the market price, right? So this is the what beta? Market price per share. Got it? Clear? Without इसमें? All clear बच्चा? Okay, चलो. तो ये हो गया अपना ये फंडा. This is what our case 1. Now move to case 2. आ जाओ case 2 पे आते हैं. So for case 2, let's do here. Case 2. चलो केस 2 में वही सेम फंडा. सबसे पहले क्या D1. D1 मींस डिविडेंड कितना है, डिविडेंड पर शेयर कितना है. सो डिविडेंड पर शेयर D1 इज व्हाट? डिविडेंड पर शेयर. अब डिविडेंड पर शेयर कैसे निकालोगे पता है ना? अर्निंग, अब तो कर लिया ना बेटा, इधर बता दिया ना, अर्निंग पर शेयर इनटू डिविडेंड पे आउट रेशियो. तो इधर तो डायरेक्ट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है. तो अर्निंग पर शेयर आपका कितना है? दैट इज कॉमन, दैट इज गिवन कॉमनली, दैट इज 80. सो अर्निंग पर शेयर इज कॉमन, दैट इज रुपीज 80 मल्टीप्लाइड बाय 80 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? डिविडेंड पे आउट रेशियो, है ना. सो सी इन सेकेंड केस डिविडेंड पे आउट रेशियो इज व्हाट? बोलो डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या है सेकंड केस में? अब डिविडेंड पर शेयर निकालना है तो क्या करोगे? डिविडेंड देना है तो कितना है डिविडेंड पे आउट रेशियो? हाउ मच इज द डिविडेंड पे आउट रेशियो? सो 80 into डिविडेंड पे आउट रेशियो 60%. यस, वेरी गुड बेटा. 60% is the dividend payout ratio. So what will be the D1? Dividend 48. Okay, so 48 will be the answer. 48. Very nice. So this 48 will be the dividend payout ratio. मतलब dividend is 48 is what? As per the dividend payout ratio 60%, your dividend per share will be 48. Okay, so this is the dividend, right? चलो, after that D1 हो गया. Now D1 के बाद क्या आएगा बेटा? Cost of capital. So cost of capital is given directly. KE. KE is how much? इस सेकेंड केस का KE कितना बेटा? 18% है ना. 18% that is क्या? 18% can be written as 0.18. जैसे इधर था ना कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12%, दैट इज क्या बोल सकते हो इसको? 0.12, जो कि हमने किया है, ठीक है. 0.12, राइट. सो 18% दैट इज 0.18. नाउ रिमेनिंग इज व्हाट? ग्रोथ रेट. सो जी आपका क्या है बेटा? ग्रोथ रेट. अब ये ग्रोथ रेट कैसे आता है? यू ऑल नो दैट इज B into R. B into R, राइट. अब B into R करो इधर, दैट इज B into R. B क्या है बेटा इधर? अच्छा, इधर B क्या होगा बोलो? नाउ व्हाट विल बी द रिटेंशन रेशियो हियर?
if your dividend payout ratio is 60%, if your dividend payout ratio is what beta 60%, clear, तो your retention ratio is what 40%. भाई अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो 60% है, राइट है, इसका मतलब रिटेन्ड अर्निंग्स कितना हुआ, कंपनी के पास रिटेन कितना है 40%, दैट्स इट, कॉमन, राइट. सो बी इज व्हाट 40%, दैट इज 40% कैन बी रिटन एज 0.40 मल्टीप्लाइड बाय आर. आर इज गिवन कॉमन, आर कितना है देखो बेटा, वो कॉमन है ना बेटा, आर 15%, दैट इज 0.15. R is given common, that is 0.15. ओके, तो कितना आ गया ग्रोथ रेट, 0.4 into 0.15, 0.06. So this is the growth rate. ठीक है, so we got growth rate also. What we got बच्चा, growth rate. Growth rate is 0.06. Got it. Cost of capital 0.18 or 18% we can say. And finally D1 अपना 48 रुपीज एज पर 60%. ठीक है बेटा, तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, याद रखो ग्रोथ रेट के लिए क्या है, B इंटू आर. तो B इज व्हाट रिटेंशन रेशियो. व्हाट इज B? B इज व्हाट रिटेंशन रेशियो. तो रिटेंशन रेशियो कैसे आएगा, इफ डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 60%, अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो आपका 60% है, इसका मतलब क्या हुआ, डिविडेंड आपने 60% पे आउट किया, तो बाकी 40% तो कंपनी ने रिटेन रखा. कंपनी हैज रिटेन्ड बैलेंस अर्निंग, कंपनी ने रिटेन रखा है, दैट्स इट, क्लियर. चलो, इसमें किसी को डाउट है तो बोल दो, किसी को कोई इशू है, नहीं समझा तो फिर से बोलो, फिर से बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का. जब तक है गावस्कर सर तो किस बात का डर. ठीक है, बोलो, कोई है, बिंदास, कोई टेंशन नहीं, सोचने का नहीं कौन क्या बोलेगा, मैं हूं. क्लियर है, पक्का, ओके. तो ये पूरा ग्रोथ रेट कैसे आया, इसमें कोई इशू नहीं. बी रिटेंशन रेशियो 40% क्यों हुआ, कोई इशू नहीं है ना, नॉर्मल, समझ गया सबको, यस, ठीक है. चलो, तो बेटा ये याद रखना, अब फॉर्मूला यूज कर लो, दैट्स इट, बराबर है. फॉर्मूला यूज कर लो, फॉर्मूला यूज करने में कोई जीएसटी नहीं लगने वाला है, समझा कि नहीं, आ जाओ. सो नाउ P0 इज इक्वल टू, अब P0 इज इक्वल टू डायरेक्टली क्या है, D1 अपना आया, D1 हाउ मच 48, बराबर है, D1 इज 48 divided by what बेटा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना था अपना 0.18 माइनस what growth rate. So growth rate is 0.06. Growth rate is 0.06. Now 48 divided by 0.18 minus 0.06. What will be the answer? क्या बात है, 0.12. 0.12. Yes, and the final answer, that is P0. P0 48 divided by 0.12 will come 400 आ रहा है, एग्जैक्ट 400 आ रहा है, एग्जैक्ट एकदम राउंडेड ऑफ फिगर 400 है. ओके, ठीक है, तो दिस इज द मार्केट प्राइस, व्हाट 400. ओके, हाउ मच बेटा 400. सो दिस इज मार्केट प्राइस पर शेयर, दैट इज 400. क्लियर, मालूम पड़ गया. ओके, so first case, in first case our market price is what beta, in first case our market price is 888.89, right है, means near about 889, ये अपना मार्केट प्राइस था अप्रोक्सीमेटली, और इधर आपका मार्केट प्राइस कितना आया है 400, राइट है. तो केस 1 का मार्केट प्राइस देख लो और केस 2 का मार्केट प्राइस. अभी आपको कोई एनालिसिस पूछा नहीं है, समझा, मालूम पड़ा, इससे टेंशन नहीं लेने का, कभी भी टेंशन नहीं लेने का. ठीक है, एनालिसिस नहीं पूछा तो करने की जरूरत ही नहीं है कि नहीं.
तो एनालिसिस अगर देखोगे तो आप देख सकते हो ना, इधर देखो, इन फर्स्ट केस मार्केट प्राइस इज मच हायर देन दी सेकेंड केस। अब उसका रीजन क्या है, तो वो एनालिसिस करना है तो वो भी देख सकते हो। देखो अभी देखो इधर क्या है, सी इन फर्स्ट केस आपका जो डिविडेंड है, डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना था, 50%। सेकेंड केस में आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है, 40% है ना, कि 60% है, कितना है सेकेंड केस में डिविडेंड पे आउट रेशियो, यस 60%। ठीक है, अभी देखो इधर आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो है 50% और यहां आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो है 60%। गॉर्डन का मॉडल किसके ऊपर फोकस करता है, थियरी में बताया था मैंने, गॉर्डन मॉडल फोकस किसके ऊपर करता है, बराबर है, डिविडेंड के ऊपर। ये क्या बोलता है गॉर्डन, डिविडेंड इज द मेन फैक्टर टू कैलकुलेट मार्केट प्राइस। याद आ रहा है थियरी, इसलिए थियरी पहले पढ़ाता हूं। देखो थियरी सबसे मेन है, लाइफ में अगर आगे बढ़ेगा, बड़े पोस्ट में जाएगा, तो थियरी का कंसेप्ट आपका बहुत क्लियर होना चाहिए, नहीं तो बड़े पोस्ट पे पहुंच ही नहीं पाएगा। समझा कि नहीं, याद रखना थियरी का कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एनालिसिस, बड़ा पोस्ट मतलब एनालिसिस करना है आपको, सोचना है, थिंकिंग, थिंकिंग पावर, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, ऑब्जर्वेशन, समझा, तो याद रखना है। तो देखो अभी इसमें डिविडेंड फैक्टर, अभी देखो फर्स्ट केस में डिविडेंड आपका कितना था, 50% है, सेकेंड केस में डिविडेंड पे आउट रेशियो है 60%, राइट है, सेकेंड केस में डिविडेंड पे आउट रेशियो 60%। तो ये फोकस ही इसके ऊपर करता है, डिविडेंड इज द मेन फैक्टर टू कैलकुलेट मार्केट प्राइस। तो डिविडेंड के बेसिस पे देख लो मार्केट प्राइस में इफेक्ट पड़ रहा है, ये यही बोलते हैं ना, डिविडेंड इज द मेन फैक्टर। ठीक है, डिविडेंड इज द मेन फैक्टर। और इसमें देखो आपको रेट ऑफ रिटर्न किधर है, इधर रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न दिख रहा है, 15% इधर भी है, रेट ऑफ रिटर्न 15% इधर भी, ये कॉमन है दोनों। बट कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है इधर, ये केस में देखो एनालिसिस कैसे करते हैं। अभी अपने को एग्जाम में कुछ नहीं पूछा है, ये सब एक्स्ट्रा है जो अभी ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, ये एक्स्ट्रा में है। तो ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है, 12%, इधर कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 12%, बट इधर कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है, 18% है, 18%। तो नॉर्मल सी बात है, अफेक्ट तो होगा ना। सिर्फ अगर आप इधर डिविडेंड देखोगे, डिविडेंड के बेसिस पे आप ऑब्जर्वेशन करोगे तो ठीक है, डिविडेंड के बेसिस पे ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, बिकॉज डिविडेंड इज द मेन फैक्टर, बट देयर आर अदर फैक्टर्स आल्सो। एक्चुअली देखा जाए देयर आर अदर फैक्टर्स आल्सो व्हिच अफेक्ट द मार्केट प्राइस, जिसकी वजह से मार्केट प्राइस पे अफेक्ट हो सकता है, राइट है। अभी इधर कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना था आपका, दिख रहा है, किधर गया, 12% का कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, और इधर कॉस्ट ऑफ कैपिटल है आपका 18%, है कि नहीं। तो इससे भी मार्केट प्राइस में अफेक्ट पड़ा है कि नहीं। और फर्स्ट केस में आपका देख रहे हो, अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो 50% है तो आपका मार्केट प्राइस है 889, अप्रोक्सीमेटली 889, और यहाँ आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो 60% होने के बाद भी आपका जो मार्केट प्राइस पर शेयर है वो है 400। और सेकेंड केस में देख रहे हो आप, सेकेंड केस पे आपका क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा है, बट आपको रेट ऑफ रिटर्न तो कॉमन ही मिल रहा है ना, वही सेम कांस्टेंट है, रेट ऑफ रिटर्न आपका कांस्टेंट है। इधर कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखो, एज कंपेयर टू फर्स्ट केस कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मोर, है कि नहीं, बराबर है। तो ये सब सिर्फ एनालिसिस है और कुछ नहीं, ये सब सिर्फ एनालिसिस है, बाकी कुछ नहीं। ऐसे एनालिसिस करने का, सीखने का, ऑब्जर्वेशन टेक्निक एवरीवन हैव टू फॉलो। ठीक है, इधर नहीं पूछा है, बट अगर एग्जाम में पूछेगा तो ऐसे एनालिसिस करके दिखा देने। फर्स्ट केस में डिविडेंड पे आउट रेशियो 50% है, जिसकी वजह से आपका मार्केट प्राइस 889। इन सेकेंड केस डिविडेंड पे आउट रेशियो 60% है, उधर मार्केट प्राइस है आपका 400, राइट है। फर्स्ट केस में कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम था, सेकेंड केस में कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा है। अरे नॉर्मल सी बात है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा होगा तो मतलब आप जो भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ले रहे हो उस पर आप पेमेंट कॉस्ट ज्यादा दे रहे हो, अब वो कॉस्ट आपका डिविडेंड हो सकता है, बराबर है। कॉस्ट क्या होगा, डिविडेंड, क्योंकि यहाँ इक्विटी फाइनेंसिंग करना है तो मेन कॉस्ट क्या होगा आपका, डिविडेंड ही होगा, है कि नहीं। अटेंडेंस डाल दो सब लोग, एवरीवन पुट योर अटेंडेंस, एवरीवन पुट योर अटेंडेंस। तो ये सब सिर्फ आपको डीप नॉलेज के लिए, कंपनी लेवल के लिए मालूम पड़ा कि नहीं, ये सब जो भी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं वो सब डीप नॉलेज या हाई लेवल का है, बाकी इतना करके आपको मार्क्स लेके जाना है, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबको पता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो भी आप इन्वेस्टमेंट लोगे, कंपनी जो भी फंड फाइनेंस करेगी
उसके लिए कितना वो पेमेंट कर रही है, राइट। अभी इक्विटी फाइनेंसिंग कर रही है तो इक्विटी को क्या देना पड़ेगा अपने को, डिविडेंड। तो अपने को एक्सपेक्टेशन करनी पड़ेगी ना कि क्या डिविडेंड देना है, क्या डिविडेंड जाएगा, वो सब क्या है, दैट इज व्हाट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर अभी तो इधर डेट फाइनेंसिंग तो है नहीं, अगर आप डिबेंचर लेते हो, डेट लेते हो, लोन लोगे, तो उसके ऊपर कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, इंटरेस्ट, सबको पता है। तो ये सब कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फंडा होता है। बट यहाँ तो फिलहाल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब इक्विटी फाइनेंसिंग से रिलेटेड है पूरा, ठीक है। तो ये याद रखो बच्चा, मालूम पड़ा, ये सब सम बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और एनालिसिस या ऑब्जर्वेशन, दैट इज कॉमन, अगर पूछेगा तो ही लिखना है, अदरवाइज एनालिसिस या ऑब्जर्वेशन नहीं लिखना है, ठीक है। क्लियर? यस, ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। यस, और अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, मालूम पड़ा, मेहनत करने में कोई जीएसटी नहीं लगता, याद रखो।